আসলে ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছো যে সিবিআই অৰ্পণ কৰা হৈছে উৰিষ্যাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা তদন্তৰ দায়িত্ব ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে সিবিআই তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়াৰ আহ্বান জনাইছিল ৰেলৱে বোৰ্ডে সিবিআই কিয় দিয়া হল বালাসোৰ দুৰ্ঘটনা তদন্তৰ দায়িত্ব সিবিআই তদন্ত কৰে ফৌজদাৰী গোচৰৰ বালাসোৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাৰিকৰী কাৰণত তেনেস্থলত কিয় সিবিআই দিয়া হল তদন্তৰ দায়িত্ব ৰেল মন্ত্ৰীয়ে কৈছে দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ উদ্ঘাটন কৰা হৈছে ৰেল মন্ত্ৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে দুৰ্ঘটনাৰে জড়িত লোক চিনাক্ত হৈছে ৰেলৱে বৰ্ডৰ সদস্য জয়া বৰ্মা সিনহায়ো কৈছে একেই কথা তেনেহলে দুৰ্ঘটনাৰ আঁৰত কুটাঘাত আছে নেকি ইয়াক এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন বৰ্তমান উত্থাপন হৈছে যে কিহৰ কাৰণে এই দুৰ্ঘটনাৰ দায়িত্ব বৰ্তমান সিবিআইক অৰ্পণ কৰা হ'ল সিবিআই তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়াৰ আহ্বান জনাইছিল ৰেলৱে বৰ্ডে কিন্তু বালাসোৰ দুৰ্ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব সিবিআই কিয় অৰ্পণ কৰা হ'ল সেয়া এতিয়া সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন যেহেতু সিবিআই ফৌজদাৰী গোচৰ তদন্ত কৰে বালাসোৰ দুৰ্ঘটনা কাৰিকৰী কাৰণত সংঘটিত হৈছিল বুলি প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত আহিছে পোহৰলৈ তেনেস্থলত এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে কিয় সিবিআইক দিয়া হৈছে তদন্তৰ দায়িত্ব ৰেল মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ ইতিমধ্যে উদ্ঘাটন হৈছে ৰেল মন্ত্ৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে দুৰ্ঘটনাৰ জড়িত লোক চিনাক্ত হৈছে ৰেলৱে বৰ্ডৰ সদস্য জয়া বৰ্মা সিনহায়ো কৈছে একে কথা তেনেহলে দুৰ্ঘটনাৰ আঁৰত কুটাঘাত নেকি में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है আৰু পাৰ্থ সেয়া ইতিমধ্যে বালাসোৰ যি দুৰ্ঘটনা সেয়া আচলতে ফৌজদাৰী গোচৰ যেটো সিবিআই কৰে যেটো আপুনি কিছু সময় পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিল যে সিবিআই কিয় অৰ্পণ কৰা হ'ল যদিও বা উল্লেখ কৰা হৈছে যে দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ চিনাক্ত হৈছে বা যোন জড়িত হৈ আছিল বা যোন দুখী সেয়া চিনাক্ত হৈছে বুলি কোৱাৰ পিছতো কিয় সিবিআই অৰ্পণ কৰা হ'ল এতিয়া সকলোৰে মনত সেয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৰশ্মিতা হয় সেই বিষয়টো চৰাচৰলৈ আহিছে আৰু সকলোৰে মনত এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিন্তু ৰেল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি ভাষ্য প্ৰদান কৰিলে সেই ভাষ্যত তেওঁ কৈছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত যিসমূহ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইনফৰমেশ্যন তেওঁ কোট আনকোট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইনফৰমেশ্যন শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইনফৰমেশ্যন লাভ কৰা হৈছে তাৰ পৰা কিছু সন্দেহ ঘনীভূত হৈছে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত হিউমেন ইণ্টাৰভেনশ্যন থাকিব পাৰে নেকি আৰু তাৰ কাৰণে সিবিআই ইনকুৱাৰী ৰেলৱে বোৰ্ডে পৰামৰ্শ দিছিলে বা তেওঁলোকে বিচাৰিছিল সিবিআই ইনকুৱাৰী হওক আৰু ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱেও সিবিআই ইনকুৱাৰী পোষকতা কৰিছিল আৰু সিবিআই ইতিমধ্যে গোচৰ লৈ ইনকুৱাৰী তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে সিবিআইৰ দল উৰিষ্যাত উপস্থিত হৈছে গৈ এতিয়া সিবিআই কোনবোৰ গোচৰ ইনকুৱাৰী কৰে সিবিআই কোনবোৰ গোচৰ কি গোচৰ হস্তান্তৰ কৰাব সেইবোৰ গোচৰ হস্তান্তৰ কৰা হয় যিবোৰত অপৰাধ জড়িত হৈ থাকে বিভিন্ন সময়ত সিবিআই সেইবোৰ গোচৰ তদন্ত কৰে যিবোৰ গোচৰত অপৰাধ জড়িত হৈ থাকে দুৰ্নীতি বা অন্যান্য বিভিন্ন অপৰাধ হ'ব পাৰে দুৰ্নীতি হত্যা সেই তেনে ধৰণৰ অপৰাধ মন কৰিব জুনমণি ৰাভাৰ যি দুৰ্ঘটনা সেই দুৰ্ঘটনাক বহুতে হত্যাকাণ্ড বুলি সন্দেহ কৰিছিল তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে সিবিআই তদন্তৰ পোষকতা কৰিছিল ঠিক সেই গোচৰসমূহক সিবিআই তদন্ত কৰে কিন্তু এই যি দুৰ্ঘটনা ৰেল দুৰ্ঘটনা ইয়াৰ সিবিআই তদন্ত কৰিবলগীয়া কৰাৰ অৱকাশ কিয় আহিলে অৱকাশ চাগৈ আহিলে কাৰণ গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটোত হিউমেন ইণ্টাৰভেনশ্যন থাকিব পাৰে কোনোবাই উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰণালীটো যিটো এক স্বয়ংক্ৰিয় প্ৰণালী ৰেল ষ্টেচনত ৰখা ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা যোৱা এখন ট্ৰেইন যদি এটা প্লেটফৰ্মত আহে আনখন ট্ৰেইন আনটো প্লেটফৰ্মেদি ওলাই যোৱা বা সেইখন ট্ৰেইন যদি সেইটো প্লেটফৰ্মত ৰখিবলগীয়া নাই বা সেইটো ষ্টপেজ নহয় তেতিয়া সেই ষ্টেচনত যদি সেই ট্ৰেইনখনৰ কাৰণে ষ্টপেজ নাই তেতিয়া ট্ৰেইনখন পাৰ কৰি দিবলৈ এটা লাইন খালী কৰি দিয়া বিভিন্ন কথা আছে লজিকেল কথাবোৰ সেই লজিকেল কথাবোৰ স্বয়ংক্ৰিয় এটা প্ৰণালীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় গতিকে এই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে পৰিচালিত প্ৰণালীটো কোনোবাই মানৱীয় হস্তক্ষেপ হৈছিল নেকি হিউমেন ইণ্টাৰভেনশ্যন হৈছিল নেকি কোনোবাই উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে জানি শুনি কৰিছিল নে অজানিতে কম্পিটেন্সি নোহোৱাৰ কাৰণে দায়িত্ব জ্ঞান নোহোৱাৰ কাৰণে কাণ্ড জ্ঞান নোহোৱাৰ কাৰণে দায়বদ্ধ নোহোৱাৰ কাৰণে তেনে ধৰণৰ কাম কৰিছিল গতিকে তেনে ধৰণৰ বিষয়সমূহ আছে ৰশ্মিতা আৰু সেই কাৰণে সিবিআই তদন্ত দিয়া হৈছে ৰশ্মিতা পাৰ্থ আৰু ইতিমধ্যে যেহেতু উৰিষ্যাত আমাৰ নেটৱৰ্ক এটিৰ সাংবাদিক সত্যজিৎ সেনাপতি তেওঁ আছে বৰ্তমান আপুনি যদি এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰে
হয় সত্যজিৎ ৰশ্মিতা হয় সত্যজিৎ সেনাপতি মই যদি নামটো শুদ্ধকৈ কৈছো সত্যজিৎ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ওড়িশাৰ পৰা ঘটনাস্থলীৰ পৰা লাইনটো কাটি গৈছে তেওঁৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিম তেওঁ সকলো তথ্য আমাক দি আছে বিশেষকৈ নতুনকৈ আৰু মন কৰিব 51 ঘণ্টাৰ পিছত দুৰ্ঘটনাৰ 51 ঘণ্টাৰ পিছতে লাইন ক্লিয়াৰ কৰা হ'ল আৰু প্ৰথমখন ট্ৰেইন সেই লাইনেদি সেই ৰুটেদি চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু এতিয়া লাহে লাহে গোটেই ট্ৰেকটো নৰ্মেলঞ্চি পিনে আহিছে ট্ৰেইন চলাচল আৰম্ভ হৈছে গতিকে 51 ঘণ্টাৰ পিছতে ট্ৰেইন চলাচল আৰম্ভ হ'ল চাগৈ সত্যজিৎ পুনৰ সংযুক্ত হৈছে সত্যজিৎ পুনৰ সংযুক্ত হৈছে रश्मिता আমি সত্যজিতৰ সৈতে কথা পাতো সত্যজিৎ आप सुन पा रहे हैं जी जरूर देखिए अभी का हालात हम बताएंगे ये है बहानगा स्टेशन जहां पर अब इंक्वायरी शुरू हो गया है हम कुछ विजुअल देखेंगे क्योंकि यहाँ का रेलवे का जो जीएम है और एडीआरएम है और वो पहुंचे हुए हैं और इंक्वायरी शुरू हो गया है अभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है ये कैसे ये घटना घटी किसका भूल था क्यों ये घटना घटी जो सिग्नल जहां पर दिया जाने वाला था वहां पर क्या गलती हुआ जिसके वजह से ये घटना घटी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कंट्रोल सेंटर है स्टेशन का मैनेजर का रूम है जहां पर ट्रेन को कंट्रोल किया जाता है वो ट्रैक दिखाया जाता है लेकिन आप जो देखेंगे अभी इंक्वायरी यहाँ पर शुरू हो गया है और जो रेलवे के जो उच्चायुक्त हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और वो बात कर रहे हैं जो स्टेशन मैनेजर थे उनके साथ बात कर रहे हैं इसी के साथ आप देखेंगे तो जो टीम भी आई है वो भी इंक्वायरी कर रहे हैं जी सत्यजीत सीबीआई का जांच शुरू हो गया सत्यजीत हाँ ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो गया आपने दिखाया कंट्रोल रूम जो है रेलवे का कंट्रोल रूम में कुछ बड़े ऑफिसर्स वहाँ कंट्रोल रूम में आए हुए हैं जांच करेंगे इंटरोगेशन करेंगे सीबीआई का शुरू हो गया है आपसे जानना चाहेंगे देखिए जो सूचना मिला है जो रेलवे के सोर्स से रेलवे के जो अथॉरिटी है उनके सोर्स से जो सूचना मिला है कि जो सीबीआई का एक टीम भी आके पहुंचा है और बात कर रहे हैं जो रेलवे के अधिकारी के साथ बात कर रहे हैं लेकिन स्पॉट क्योंकि हम जहां पर स्पॉट घटना स्थल है वहां का भी दृश्य दिखा रहे हैं क्योंकि ये स्टेशन के पास ही घटना 200 से 300 मीटर दूर ही घटा था लेकिन यहाँ तक पर नहीं पहुंचे हैं अभी तक सीबीआई की कोई टीम नहीं पहुंचे है लेकिन जो रेलवे के एक सीनियर ऑफिसर ने हमको कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे जो सूचना उन्होंने दी है कि सीबीआई की एक टीम भी यहाँ पर पहुंचे हैं और बहुत जल्दी हो सके तो ये स्पॉट पर भी आएंगे और बात भी करेंगे जनरली जो सिग्नल मैनेजर होते हैं और रेलवे मैनेजर हैं उनके साथ बात करेंगे कैसे ये घटना घटी कैसे ट्रैक चेंज करना था क्यों ट्रैक नहीं चेंज कर पाया ये सभी के लिए ये जो अथॉरिटी है जी सीबीआई भी आएंगे रश्मिता के घटनास्थल विजुअल दिखाई सत्यजित आपसे फिर जुड़ेंगे रश्मिता एकदम घटनास्थली सत्यजिते ভিজুৱেল দেখুৱাইছে সেই চাগৈ এইটোৱে মেইন লাইন তাৰ সাইডৰটোৱে হৈছে লুপ লাইন আৰু সেই মেইন লাইনৰ পৰা লুপ লাইনলৈ চাগৈ কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছখন ডাইভাৰ্ট কৰা হৈছিল পুনৰ সত্যজিত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে সত্যজিত फिर जुड़ रहे हैं तो फिर आप अभी आपने दिखाया जो जिस एरिया पे ये एक्सीडेंट हुआ था वो उस एरिया का हम लोग विजुअल देख पा रहे हैं पूरा क्लियर है अभी ट्रेन चलना भी शुरू हो गया है देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं देखिए विजुअल देखिए जी देखिए यहाँ पर अभी ट्रेन चल रहा है लेकिन रेस्टोरेशन का काम भी चल रहा है क्योंकि 2 ट्रैक को रेडी किया है ट्रेन जाने के लिए और धीरे धीरे से कोई ट्रेन अपने जो स्पीडी लिमिट है उसमें नहीं जाता है वो धीरे धीरे से यहाँ पर क्रॉस किया जा रहा है और अभी बहुत सारे ट्रेन सुबह से बहुत सारे पैसेंजर ट्रेन अभी गया है और आ रहा है ट्रेन यानी हम बोल सकते हैं अप और डाउन ये दोनों क्लियर किया गया है दोनों ट्रैक अभी क्लियर है लेकिन हम थोड़ा विजुअल दिखाएंगे जो ट्रैक है जो ट्रैक पर आप देखेंगे देखिए लूप लाइन कहाँ है और जो मेन ट्रैक कहाँ है हम थोड़ा दिखाएंगे ये लाइन देखिए जो लेफ्ट हो राइट हो के जो जा रहा है वो लूप लाइन है और सीधा वाला मेन लाइन था वो जो लूप लाइन दिख रहे हैं आप वही लाइन पे खड़ा हुआ था मालगाड़ी उसी दिन ये देखिए तस्वीर जो एक आदमी चल के आ रहा है देखिए आप वो जो ट्रैक था वही ट्रैक पे मालगाड़ी खड़ा था और जो सीधा वाला ट्रैक आप देख रहे हैं वो सीधा वाला ट्रैक से करमंडल आने वाला था और सीधा आके करमंडल अपने मंजिल तक जाने वाला था लेकिन उस दिन कुछ ही गलती किसी का गलती तो अभी तो इंक्वायरी चल रही है लेकिन कुछ ऐसे गलती हुआ जिसके वजह से वो सीधा नहीं आया वो जो लूप लाइन है
उस तरफ मुड़ गया ट्रेन और सीधा जाके लगा जो करमंडल को। तो अभी इंक्वायरी का पार्ट ये है कि क्यों सीधा जाने वाला ट्रेन क्यों मुड़ा, किसमें गलती था। क्योंकि जो देखिए रेलवे की तरफ से जो सूचना आ रहा है कि ग्रीन सिग्नल ग्रीन था, सिग्नल जो लाइट था वो रेड नहीं था, वो ग्रीन था। तो फिर इससे क्या हुआ जी, जो ग्रीन सिग्नल था वो क्यों, जब तक जो रेलवे के नियम के अनुसार अगर ट्रेन ट्रैक नहीं क्लियर होगा तो सिग्नल ग्रीन ही नहीं आएगा, लेकिन ग्रीन कैसे आया? सत्यजीत आपसे जानना चाहेंगे। सत्यजीत आपने बताया, पूरा ब्यौरा दिया कैसे ये एक्सीडेंट हुआ वेन्यू से जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ था। आपसे जानना चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नल जो सिस्टम है, मतलब सिग्नल जो सिस्टम है वो ऑटोमेटेड एक सिस्टम है, खुद ये सिस्टम चलता है, तो कोई ह्यूमन इंटरवेंशन हो सकता है? किसी ने जानबूझ के ये क्या होगा? यही बड़ी बात है, क्योंकि कल हम कुछ देखिए कुछ दूसरे जो है स्टेशन मैनेजर से भी बात किए हैं कि वो भी बोले हैं कि जब तक ऐसा इंटरलॉकिंग सिस्टम है, ये ऑटोमेटेड है, जब तक वो ट्रैक पर कोई गाड़ी खड़ा होगा वो ट्रैक पे और दूसरा गाड़ी नहीं घूमेगा और सिग्नल कभी भी नहीं मिलेगा। ये कोई चाहकर भी नहीं कर पाएगा, ये ऑटोमेटिक लॉक होता है। ये पूरा जो हम सिस्टम है ये ऑटोमेटेड है और ये मैकेनिकल ये होता है। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि ये सिग्नल ग्रीन था लेकिन वो ट्रैक जो रिवर्स नहीं हुआ था, वो लूप लाइन को कनेक्ट होकर रह गया था। ये किसी का फॉल्ट है ये तो अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो दूसरे मैनेजर है उनका बोलना है कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जो रेलवे का टेक्नोलॉजी है वो हमेशा हर दिन हजार ट्रेन जाता है और सभी ट्रेन में यही सिस्टम काम करता है। जब तक वो लूप लाइन से रिवर्स मेन लाइन तो क्लियर नहीं होगा तब तक ग्रीन सिग्नल आएगा ही नहीं। तो उस दिन क्या हुआ, ये टेक्निकली फॉल्ट है और कोई ऐसे किया गया है। क्योंकि देखिए इसलिए क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि सीबीआई को इंक्वायरी दिया गया है, सीबीआई इंक्वायरी करेगा, मतलब ऐसा कुछ संदेह भी है डिपार्टमेंट को। जी संदेह है, ये संदेह है, आपने बताया जी संदेह है, ये टेक्निकल फॉल्ट है या ह्यूमन फॉल्ट है, किसी ने जानबूझ के तो नहीं किया, यही बड़ा सवाल है। आपसे वो असम के एक यात्री का एक खबर वहां से आ रही है, तो उनके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए वो जो यात्री थे वो सबको हम देखेंगे, जितने भी लोग थे सबको चकित करने वाला खबर जो कल आया। क्योंकि जो 2 दिन बीत जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर धूप है, यहाँ पर खड़े होना मुश्किल हो रहा है। हम भी 3 दिन से यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर इतना धूप है, कोई खड़े होगा 10 या 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा तो वो पानी पिएगा, ऐसे होता है उसका सनस्ट्रोक होने का चांस है। लेकिन वो 2 दिन तक जाके जो ट्रैक देख रहे हैं इसी तरह ट्रैक से दूर जाके वो पड़ा रहा। 2 दिन तक उसका सेंस नहीं था, लेकिन वो मरा नहीं, वो जिंदा था। और सबसे बड़ी बात है, कल जब जीआरपी ने जाके सर्च कर रहा था आसपास रेलवे के, तो वो मिला, तब उसको उठा के लेके गए यहाँ पर सौरव मेडिकल, लेकिन उसके सर में और हाथ में गंभीर चोट था, इसलिए सौरव मेडिकल यहाँ से फिर बालेश्वर मेडिकल कॉलेज को उसको ट्रांसफर किया गया। अभी का जो हालात है उनका चिकित्सा किया जा रहा है, उनका स्वास्थ्य अवस्था ठीक है। जो डॉक्टर को साथ हम बात कर रहे थे वो डॉक्टर ने बोले कि वो ठीक ठाक है, अभी तो ज्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन धीरे धीरे वो बात करेंगे और उनका स्वास्थ्य अवस्था ठीक है और फिर वो 4-5 दिन के बाद अपने घर भी लौट सकते हैं। जी शुक्रिया आपका सत्यजित सेनापति जी ये जानकारी के लिए। और पाठक সেয়া আসলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু সেই দৃশ্যতে দেখুৱালে যে কেনেধৰণে আসলতে ৰেলৱে ট্ৰেকৰ বিসংগতি বা সেয়া সিগনেল খেলিমেলিৰ বাবে কেনেদৰে এখন ট্ৰেকত আহি থকা ৰেল আনটো ট্ৰেকলৈ গুচি গ'ল, যাৰ ফলত এই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। আৰু সেই তাৰ আঁৰত কোন জড়িত হৈ আছিল বা সেয়া ভুলবশতঃ হ'ল নে কাৰোবাৰ মানৱীয় ভুল, তাক লৈ এতিয়া সিবিআই ইনকোয়াৰি দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি মিডিয়েট নম্বৰ এটা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথান ষ্ট্ৰং, মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।